Hello students, myself Dr. Anita Nigam, Assistant Professor, Department of Geography, DBS College Kanpur. Today the topic is prismatic compass. Actually this is the practical subject, practical topic, but before going to the field we should know the theoretical part of this compass, what are the uses of this compass and how we are going to perform the practical regarding this. So let's start. First of all, we should know what is compass and what is surveying. Surveying are of two types. Chain survey. It can be used when the area to be surveyed is comparatively small and fairly flat. But when we talk about traversing when the area is large, undulated, crowded with many details like triangulations. Many triangulations will be there. In such areas, the traversing method is adopted. Chain and survey, tape survey, these are the old methods, but traversing is the method which is used in nowadays. So first of all, we will know how and what is traversing. Traversing, it consists of number of connected lines. The length are measured by chain or tape and the direction is measured by the angle. In one method, the angle measuring instrument is the compass. So compass surveying, in where directions of survey lines are determined with the compass and length of lines are measured with a tape or chain. The whole process is called as compass traversing. The traversing are of two types. Here you can see closed traverse and open traverse. So both the surveys can be done in the field. So before going to field, we should know what are the principles of compass surveying and how to do it. So it is a survey which involves a series of connected lines. The magnetic bearing of the lines are measured by this instrument which is known as prismatic compass, and the distance are measured by the chain. Compass surveying is recommended when the area is large, undulating and crowded by many details. Compass surveying is not recommended for the areas where local attraction means where steel structures, iron ore deposits or electric cables are there, so we cannot perform this survey over there. So large fields are needed, undulating and crowded with many details, where we can do this compass survey. This is traversing. This is closed traverse. In this traversing, we take the different stations. Here you can see we have taken 5 stations. Station A, Station B, Station C, D and E. And this is the survey of closed traverse. Now we come to types and uses of compass. Compass are of two types. First of all, we will know what is compass. Compass is a small instrument which consists of magnetic needle, graduated circle and a line of sight. And with this line of sight, we can measure the angle between two lines directly, but can measure the angle of line with reference to magnetic meridian. In next slide we will see what is magnetic meridian and what is magnetic needle, what is graduated circle. We will see in detail. So first of all, we should know that prismatic compass and the surveyor compass, these are the two types of compass available. This is the picture of prismatic compass. Here all the parts of the prismatic compass, total 18 parts are there. So these parts are shown here with the help of number 1 to 18. So we will discuss this one by one. First we should know what is prismatic compass. Prismatic compass is a magnetic compass, just now I have discussed, and which consists of the following parts. So parts are
Number one, here you can see in this picture a box, black color box is there. I can show you with the help of here. This box is there. So this is the cylindrical metal box which is having a diameter of 8 to 12 centimeter. What is the work of this metal box? Why it is made up of metal and what it does? So this box protect the compass. This is the compass and this is the box. So this box compass protect the compass and forms entire casing or body of the compass. It protects compass from dust as well as rain. For example, we use specs जो लोग चश्मा लगाते हैं तो हम लोग अपने चश्मे को जब उतारते हैं तो ऑलवेज वी कीप आवर स्पेक्स इन द केस. We do not throw our specs here and there. Same way here also this case is given just to cover this, protect this compass from dust and rain. Now the one by one we are going to study the parts of this prismatic compass. One more thing I would like to discuss here. This prismatic compass, why it is called as prismatic? Why not with other name? This is the compass, we already know. But why it is called as prismatic? First of all, we should know this, why it is called as prismatic. So prism is there in this compass. Prism, what is prism? Prism is a triangular device which is made up of plastic or glass, or it can be in other transparent material. When light goes through a prism, the light bend due to phenomena which is called as refraction. So what is the work of this prism? Why it is there in this compass? So it works in three purposes. First one is reflection. Reflection means when you will see this compass, there is a ring between this which is called as dial. In this dial, angles are given which are written horizontally. But when you will see these numbers from the prism, it will reflect and it will show you in a vertical form. जैसे आप कह सकते हैं कि जो लेटे हुए नंबर है उसको खड़ा करके दिखाने का काम ये प्रिज्म करता है. सेकेंड थिंग इज मैग्नीफाइंग. छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाने का काम भी ये प्रिज्म करता है. जैसे ये जो डायल में जो आपके एंगल्स लिखे हुए हैं या जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये इसको देखने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन जब इस प्रिज्म से देखते हैं तो यही नंबर्स और जो इसके बीच की मिनट्स और सेकंड्स की जो नीडल्स होती हैं या लाइंस होती हैं, इसको जूम करके दिखाने का काम, मैग्नीफाई करके दिखाने का काम ये प्रिज्म करता है. तो इसमें तीन चीज़ें हैं. पहले लेटे हुए को खड़ा करके दिखाता है, छोटे को बड़ा करके दिखाता है, एंड थर्ड वन इज़ उल्टे को सीधा करके दिखाने का काम करता है. When you will see these numbers directly from the upside, you will see all the numbers in reverse form. मतलब वो उल्टे दिखेंगे आपको. But when you will see from the prism, वो नंबर सारे आपको सीधे दिखाई पड़ेंगे. So three work of the prism is there. So this is the reason why this instrument is called as prismatic compass. So this is a metal box, already I have discussed you, and it is the diameter of 8 to 12 centimeters and it protects the compass from entire casing or body of the compass. Next is pivot. Pivot is provided at the center. Here you can see this is the pivot. This is a center of the prismatic compass and it supports this magnetic needle. Here you can see this needle. This is a needle which shows directions north as well as south. So holding
and supporting this magnetic needle over it is done by pivot. Then lifting pin and lifting lever. A lifting pin is provided just below the sight vein. Two veins are there. Here you can see this is the sight vein and this is the object vein. So below the sight vein, here you can see below the sight vein, this part, when the sight vein is folded, when you will fold this prism or the sight vein, it press the lifting pin, and the lifting pin with the help of lifting lever then lift the magnetic needle out of pivot point to prevent the damage to pivot head. So this is the work of lifting pin and lifting lever. Now next is magnetic needle. Here in this diagram you can see this magnetic needle. ये जो magnetic needle होती है, ये अभी हमने आपको दिखाया था लास्ट स्लाइड में कि प्रिस्मेटिक कंपास के सेंटर में एक नीडल लगी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल. ये this magnetic needle is the heart of this instrument. Without this we cannot measure the angles. So this needle measures angles of line from magnetic meridian. A needle always remain pointed towards the north pole and the south pole. Suppose this is the needle. Here you can see this is the needle, and this will be the north pole and this will be the south pole. So where will be the north pole and the south pole? This magnetic meridian always remain pointed toward the north. Okay. So two ends of the needle, they were freely suspended on any support. Next comes the graduated circle or the ring. Graduated circle and the ring let me show you the diagram of graduated circle or the ring. Here in this diagram also I have shown you this ring. So this ring is of an aluminium, made up of aluminium, and marked with 0 degree to 360 degree to measure all possible bearings of lines and attached with the magnetic needle, and this ring is graduated to half a degree. Now next thing is your prism. Prism already I have discussed you. What is prism? Prism is used to read these graduations on the ring and take exact reading by the compass. It is placed exactly opposite to the object vein. Object vein, this is the object vein. This is the object vein and this is the prism. Okay. So object vein, what is object vein? Object vein is diagrammatically opposite to the prism. This is the prism and this is opposite to the prism. And eye vein, opposite to the eye vein. This is the prism and this is also called as eye vein, and this is the object vein. So the object vein is carrying a horse hair. Here you can see in the center of this a line is shown. This line is horse hair, or you can say it is a black thin wire to sight the object in line with eyesight. Now comes to the eye vein. Eye vein, this is the eye vein. Eye vein is a fine slit provided with eye hole. Here eye hole is there and a small slit is there to bisect the object from the slit. इसी छेद से, ये जो छोटा सा छेद दिया होता है, इसी से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज आई वेन. दिस आई वेन इज प्रोवाइडेड विद प्रिज्म and can be lifted up and down by the stud to bisect the object of higher level. Now comes the glass cover. Here you can see some glasses are there. This one. So this is the glass cover. Glass cover the instrument box from the top such that needle and graduated ring is seen from the top. So this is the glass cover.
Where is the glass cover? This is the glass. This whole part is covered with this glass. This is the glass cover. And now what have I have shown earlier, this one is your sunglasses. Why sunglasses is given over here? These glasses are used when some luminous object are to be bisected. Suppose when we are on the field, बहुत धूप है, तो we cannot see directly all the numbers clearly. So we can use the sunglass which is of blue color or black color. Different colors are given here to sharp the picture of the object. Then reflecting mirror. Here you can see this is the reflecting mirror. This one is reflecting mirror. This reflecting mirror is used to get image of an object located above or below the instrument while bisection. It is placed on the object vane. This is the object vane and here it is placed. Now next, how does it work? Working of the prismatic compass. When we talk about working of the prismatic compass, we should know this is the stand. This is the stand. Let me show you one thing. Here, this is the stand. This stand is called as tripod stand. Tripod means 3 legs, 1, 2 and 3. It has 3 legs. This is why it is called as tripod stand, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिपाद, क्योंकि इसके 3 पैर होते हैं, इसीलिए इसको त्रिपाद कहा जाता है. When the needle of the compass is suspended freely, it always pointed towards the north. Therefore, all the angles measured with the prismatic compass are with respect to the north. That is called as meridian, magnetic meridian. The horizontal angle made by survey line with reference to magnetic north in clockwise direction is called bearing of a line. जो हम अपनी आई साइट और हमारा जो आई वेन है और जो हमारा साइट वेन है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, when all the three comes in a horizontal angle, तो उस समय जो हम रीडिंग को नोट करते हैं, that is called as bearing of a line. While using the compass, it is usually mounted on a light tripod. This is very light in weight tripod stand, which is having vertical spindle in it, the ball and the socket arrangement to the which the compass is screwed. इस tripod stand पे हम क्या करते हैं, with the help of ball and socket is there. With the help of ball and socket, we can arrange this prism or total prismatic compass on the tripod stand. Now, the temporary adjustment is needed while before doing the practical. So, what are these temporary adjustments? 3 adjustments we have to do. First one is centering. Centering is the operation which compass is kept exactly over the station from where the bearing is to be determined. जहाँ पर भी हमें अपना स्टेशन लेना होता है, उसके जस्ट ऊपर हम इसको अपने स्टैंड को रखते हैं और उस स्टैंड के सेंटर पार्ट से हम इसकी सेंटरिंग करते हैं. पहले के समय में ओल्ड मेथड में क्या होता था, द सेंटरिंग इज चेक्ड बाय ड्रॉपिंग अ स्मॉल पेबल. किसी भी पत्थर को हम सेंटर से नीचे की तरफ छोड़ते थे और वो जहाँ जाकर गिरता था, द पेबल फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द पेग, देन द सेंटरिंग, हम कहते थे ये सेंटरिंग करेक्ट है. इफ़ नॉट, अगर वो सेंटरिंग करेक्ट नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू, देन सेंटरिंग इज करेक्टेड बाय एडजस्टमेंट द लेग्स ऑफ द ट्राईपॉड. जो त्रिपाद है हमारा, ट्राईपॉड स्टैंड है, उसके लेग्स को एडजस्ट करके हम उसकी सेंटरिंग को एडजस्ट करते हैं. बट nowadays we are not using a pebble. Instead of pebble we use plumb and bob for doing the centering. Same way, leveling is the second step. Leveling of the compass is done with the aim to freely swing the graduated circular ring of the prismatic compass.
The ball and socket arrangement on the tripod will help to achieve a proper level of a compass. जब हमने उसको सेट कर दिया प्रिस्मेटिक कंपास को अपने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, उसके बाद उसकी जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो मूव करती रहती है। मूव करके वो कहाँ पर रुकती है? जहाँ पर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वहाँ पर जाकर वो नॉर्थ शो करती है और वहाँ पर रुकती है। अब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमने लगाया है, जो प्रिस्मेटिक कंपास विच वी हैव प्लेस्ड ऑन द ट्राइपॉड, whether it is leveled or not leveled, how we can check it? So this can be checked with the help of spirit level, an instrument with the help of spirit level. But if we don't have spirit level with us at that time, then old method of checking this leveling, we can roll down our pencil on the glass cover. जैसे ही अगर वो रोल कर जाती है, जिस साइड को रोल करके गिरेगी इसका मतलब कि वो हमारा लेवल नहीं है। अगर पेंसिल को हमने सेंटर पे रखा है और अगर वो पेंसिल सेंटर पर ही रहती है, इट मीन्स इट इज़ प्रॉपरली लेवल्ड। और अब तो हमारे पास न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्पिरिट लेवल, सो वी कैन मेजर द वी कैन डू द लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। थर्ड एडजस्टमेंट इज़ योर फोकसिंग। फोकसिंग में अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो आई वेन है, ऑब्जेक्ट वेन है एंड द ऑब्जेक्ट और द स्टेशन यू कैन से, सो ऑल द थ्री कैन बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन. So the prism is moved up and down in its slide till the graduation on the aluminum ring are seen clear, sharp and perfect focus. उसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों को एक लाइन में लेकर आते हैं और प्रिज्म से जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उस एल्युमिनियम रिंग में जो ग्रेजुएशंस होते हैं उसको हम क्लियरली पढ़ पाएँ, शार्पली पढ़ पाएँ. इसके वजह से हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको फोकस करना पड़ता है. एंड द पोजीशन ऑफ द प्रिज्म विल डिपेंड ऑन द विजन ऑफ द ऑब्जर्वर. जैसे हमारी अगर आईसाइट वीक है तो हमें उसको फोकस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपकी विजन जो है ऑब्जर्वर की, जो देख रहा है उसमें ऑब्जर्वर जो है, अगर उसकी विजन अच्छी है तो ही कैन और शी कैन फोकस इट पर्टिकुलरली in a few minutes. So now how we can observe this bearing of a line? That means focus we have already done, and now how we will observe the bearing of a line. Suppose AB is a line of which the magnetic bearing is to be observed. ऐसी लाइन है AB जिसका मैग्नेटिक बेयरिंग हमको देखना है. So ranging rod will be fixed at station B. We have taken two stations, station A and station B. तो B में हम क्या करेंगे, ranging rod को fix करेंगे in the line AB and the compass will be centered on a station A. Station A पर हमने अपना compass लगा दिया और जो prismatic compass है, we will turn the compass in the direction of line A and B. When B is bisected by the vertical hair, अभी हमने आपको बताया था जो हमारा साइड वेन होता है उसमें एक हॉर्स हेयर होता है, वर्टिकल हेयर होता है. तो जब हमारा स्टेशन B बाइसेक्ट हो जाता है, वर्टिकल हेयर जो उसमें लगा है बाइसेक्ट हो जाता है, when ranging rod at B comes in the line with the slit of I vein, यानी हमारा I vein, हमारी साइड वेन और हमारी रेंजिंग रॉड जब एक वर्टिकल लाइन में आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, उसमें प्रिज्म से जो रीडिंग होती है, बेयरिंग होती है, उसको हम उस ग्रेजुएशन रिंग में जो बेयरिंग दी हुई होती है उसको हम मार्क करते हैं. तो द एनलार्ज पोर्शन गिव्स एक्चुअल पैटर्न ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द रिंग. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम इस डायग्राम में, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी रिंग है पूरी जो एल्युमिनियम से बनी हुई है. इसमें जो डिग्रीज दी हुई हैं, दिस इज़ योर 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड दिस इज़ योर 20 डिग्री. दिस इज़ द आउट बॉक्स, दिस इज़ ग्रेजुएटेड रिंग एंड दिस इज़ द आई वेन एंड ऑब्जेक्ट वेन. सो दिस विल बी योर स्टेशन ए. स्टेशन ए विल बी योर लाइन ऑफ साइट and this is station B.
station B will be your object. So we will place I vane on the line of sight and object vane on the object side. And this is the prism here, this is the prism जो आइसलेट होती है. यहाँ से हम इस B ऑब्जेक्ट को और हमारी जो ऑब्जेक्ट वेन है उसको, जो उसमें हॉर्स लाइन होती है, इन तीनों चीज़ों को, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टेशन बी, दिस इज़ आर स्टेशन बी. ये तीनों जब तक एक वर्टिकल रो में नहीं आ जाती तब तक हमको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है. और एडजस्टमेंट करने के बाद वी विल रीड दिस रीडिंग्स. ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई गई है, इस तरह की रीडिंग्स इसमें दी होती हैं. तो इन रीडिंग्स को हमको रीड करना होता है और रीड करके अपनी फील्ड बुक में इसको हम नोट करते हैं. अब बेयरिंग तो हमने बताया आपको कि लाइन ऑफ बेयरिंग होती है, उसको हमें नोट करना होता है बेयरिंग को. लेकिन ये बेयरिंग होती क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे. तो बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद द रेफरेंस ऑफ लाइन डिपेंडिंग अपॉन द मेरिडियन. जो हमारा आई साइट और जो हमारा साइट वेन और जो हमारा ऑब्जेक्ट वेन है उसके बीच की जो हम रीडिंग नोट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है तीनों के बीच में, उसकी जो रीडिंग को नोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बेयरिंग. बेयरिंग जो है वैसे 4 टाइप की होती है, पर हम यहाँ पर आपको 2 टाइप की एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ट्रू बेयरिंग एंड मैग्नेटिक बेयरिंग. यही 2 बेयरिंग जो है हमको मालूम होनी चाहिए ताकि हम बेयरिंग को नोट कर सकें. सो व्हाट इज़ ट्रू बेयरिंग? ट्रू बेयरिंग इज़ अ लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन. अभी इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम दिखाकर आपको समझाएंगे कि किस तरह से ट्रू बेयरिंग और हमारी मैग्नेटिक बेयरिंग होती है और इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो जो ट्रू बेयरिंग है वो जो हमारी बेयरिंग, इससे मेजर करते हैं ट्रू नॉर्थ इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो मैग्नेटिक बेयरिंग होती है, इट इज़ अ बेयरिंग ऑफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक नॉर्थ. अभी देखिए, ये चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं हो रही है तो नेक्स्ट स्लाइड में आप डायग्राम से क्लियर करते हैं. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ आर नॉर्थ एंड दिस इज़ आर ईस्ट. जैसे अगर हम डायरेक्शन शो करते हैं तो दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये हमारा नीचे साउथ हो गया. तो जो हमारा ये नॉर्थ और ये साउथ, इनके बीच का अगर ये हमारा लाइन ऑफ साइट है तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है. जो हमारा रियल नॉर्थ और ईस्ट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम ट्रू बेयरिंग बोलते हैं. और जो हमने साइट की है लाइन यहाँ वाली, और इसके बीच का और जो आपका ईस्ट का डायरेक्शन जो है, या जो बेयरिंग बनती है, जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग. नाउ कम्स टू द डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग. जो बेयरिंग है उसको हम 2 सिस्टम से डेजिग्नेट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम. अब इसको समझते हैं कि ये दोनों सिस्टम होते क्या हैं. पहले होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम को देखेंगे. द बेयरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक बेयरिंग. जो मैग्नेटिक बेयरिंग होता है, जो होल सर्कल बेयरिंग होता है, उसमें हम 0 से लेके 360 डिग्री की वैल्यूज़ जो वेरीज करती हैं उसको हम पूरे को एक साथ पढ़ सकते हैं. बट इन द क्वाड्रेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड प्रोग्रेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री एंड इट विल ऑल्सो गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली. So first quadrant will be from 0 to 90 degree. Second quadrant will be from 90 to 180 degree. Third quadrant will be 180 to 270 and last fourth quadrant will be up to 360 degree. इसमें भी 0 से 360 हम पढ़ सकते हैं बट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. नॉर्थ से स्टार्ट होगा तो 0 से 90 एक क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड अप टू 270 to 360 that will be called as fourth
क्वाड्रेंट। ये जैसे आप यहाँ पर बेयरिंग देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। यानी कि हम यहाँ 0 से पढ़ना शुरू करते हैं अगर, तो 0 से लेके 10, 20 पूरा हम यहाँ 360 डिग्री तक एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम क्वाड्रेंट के रूप में देखेंगे तो हमारा ये एक अलग क्वाड्रेंट बन जाता है। 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, दिस विल बी योर सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड 180 to 270 this will be your third quadrant, and 270 to 360 this will be your fourth quadrant. अब जब हम बेयरिंग को नोट करते हैं इस होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम से, तो बेयरिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग. फोर बेयरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैकवर्ड बेयरिंग. पहले हम देखते हैं फोर बेयरिंग क्या होती है. अ बेयरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन. जिस वे में हम सर्वे कर रहे हैं, जिस तरफ हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम अगर स्टेशन ए में हैं और स्टेशन ए से स्टेशन बी का एंगल मेजर करते हैं, दैट विल बी योर फॉरवर्ड बेयरिंग और इट इज़ कॉल्ड एज फोर बेयरिंग. बट व्हेन द line of angle is measured in the direct opposite direction, that is from B, if we will measure the angle of A, यानी A और B दो स्टेशन थे, A से B हमने मेजर किया एंगल, that will be your forward bearing. और जब हम B से A एंगल को मेजर करेंगे, that will be your back bearing और backward bearing. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये बी स्टेशन का नॉर्थ है. तो ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जब हम एंगल, इस एंगल को मार्क कर रहे हैं, देन दिस विल बी योर फोर बेयरिंग. अब अगर हम बी स्टेशन पे अपना स्टैंड रख लेते हैं और बी स्टेशन से ए स्टेशन की तरफ अगर हम मेजर करते हैं अपना एंगल, सो दैट विल बी योर बैक बेयरिंग. जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज़ योर बैक बेयरिंग. फोर बियरिंग जो होती है उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फोर बियरिंग है, या इसमें अगर कोई हमारे डिफेक्ट आता है या कोई एरर आता है, तो उस एरर को हम कैसे पहचान सकते हैं. सो द बेयरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसा अभी हमने आपको बताया था, अलोंग द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, इज़ नोन एज फोर बेयरिंग. फोर बेयरिंग इज़ इक्वल टू back bearing. Four bearing is back bearing plus or minus 180 degree. And what is back bearing? Bearing of line measured in the backward direction. Back bearing will be is equal to forward bearing plus or minus 180 degree. अब यहाँ जो प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड बेयरिंग हमने आपको बताया कि बैकवर्ड बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री, बैकवर्ड बेयरिंग forward bearing plus or minus 180 degree. So plus sign is applied when forward bearing is more than 180 degree. Minus is applied when the forward bearing is less than 180 degree. और यही अगर quadrant bearing में होता है तो सिस्टम जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है. In quadrant bearing system, the FB and BB, that is forward bearing and backward bearing, are numerically equal, बट द क्वाड्रेंट आर जस्ट ऑपोजिट. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बेयरिंग, इसमें भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, और बैकवर्ड बेयरिंग भी 60 है, लेकिन जो क्वाड्रेंट था हमारा वो चेंज हो गया, नॉर्थ से साउथ हो गया और ईस्ट से वेस्ट हो गया. सो दिस विल बी योर क्वाड्रेंट बेयरिंग. और अगर ये जो फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग की जो हम बात कर रहे थे, दिस विल बी योर होल बेयरिंग मेथड. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मोर देन और लेस देन की अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है बी का, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, बैकवर्ड बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ बी सी. तो बैकवर्ड बेयरिंग जो होगी वो कितनी होगी,
450 डिग्री 30 मिनट्स अगर हमारी निकली है तो हम उसमें क्या करेंगे, वी विल ऐड 180 डिग्री, क्योंकि ये कितना था, 180 से कम था। तो 180 से कम डिग्री अगर आती है तो उसमें हम प्लस करते हैं, अगर ज़्यादा आती है तो माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल एक्सटीरियर एंगल का है, यहाँ पर जो हमारा फॉरवर्ड बियरिंग थी वो 280 डिग्री 45 मिनट्स थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, माइनस 180 डिग्री किया था। लेकिन यहाँ पर जो एंगल हमारे निकले हैं, ये 120 डिग्री 15 मिनट्स या 45 डिग्री 30 मिनट्स, ये दोनों क्या हैं, 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 180 डिग्री। तो जो हमारा इंटीरियर एंगल निकला है डी का, वो है 99 डिग्री और 45 मिनट्स। अब हम बात करते हैं लोकल अट्रैक्शन की। लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक नीडल था जिसमें नॉर्थ और साउथ जो है आपका फ्रीली सस्पेंडेड होता है, और वो नॉर्थ पे जाकर मैग्नेटिक नॉर्थ जहाँ शो करता है, आपकी नीडल जो है वहीं पर आकर रुक जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आयरन ओर है, या फिर रॉक्स हैं, मैग्नेटिक रॉक्स हैं, या केबल्स हैं जिसमें करंट आ रहा हो, या आयरन के इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, तो ऐसी जगहों पर हमारा जो लोकल अट्रैक्शन होता है, हर एक स्टेशन पर अगर वो अट्रैक्शन हमें मिला तो उसकी वजह से हम जो बेयरिंग नोट करते हैं उसमें हमारे एरर दिखाई पड़ता है। अब उस एरर को कैसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हाउ टू डिटेक्ट द लोकल अट्रैक्शन। The presence of local attraction at any station may be detected by observing the fore and back bearing of the line. मान लीजिए हमने दो ए स्टेशन की और बी स्टेशन की फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग को मेजर कर लिया। जब हम दोनों फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग को माइनस करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस शुड बी 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से कम आ रहा है या 180 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने वहाँ पर कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन था जिसको ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर करके हमने उस रीडिंग को नोट कर लिया। लेकिन ये लोकल अट्रैक्शन जो है किसकी वजह से हो सकता है, एन एरर इज़ इन ऑब्जर्वेशन ऑफ आइदर फोर और बैकवर्ड बियरिंग और बोथ। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो, लोकल अट्रैक्शन नहीं था उसकी वजह से भी अगर कहीं पे बेयरिंग में डिफरेंस आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन था। अगर वो पोल वगैरह नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्वे कर रहा है व्यक्ति, अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द सर्वे, उसकी जेब में कोई आयरन की चीज़, या उसने कोई बेल्ट बांधी है उसमें आयरन की चीज़, या उसने कोई घड़ी पहनी है उसमें आयरन, या उसमें कोई मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर किसी भी तरह का लोकल अट्रैक्शन होगा तो हमारी ये जो डिफरेंस है फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग का, ये 180 डिग्री नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हमें डिस्क्रिपेंसी नोट करने को मिल रही है। It may be noted that local attraction at any station affects all the magnetic bearing by an equal amount. और अगर हम उस बेयरिंग को छोड़कर, अगर हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, हमारी आगे की जितनी भी रीडिंग्स हम लेंगे, जितनी भी बेयरिंग्स नोट करेंगे, हमको उन सब में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी एक बेयरिंग अगर स्टार्टिंग की रॉन्ग हो जाती है फॉरवर्ड बेयरिंग, तो आगे की जितनी भी बेयरिंग हम नोट करते हैं वो सब हमको गलत मिलेंगी। सो बाई calculating the included angle at the affected station and by checking the required correction starting from the unaffected bearing, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग जैसे जैसे लेते जाते हैं स्टेशंस की, दूसरे स्टेशंस की, सो देन एंड देयर इटसेल्फ वी शुड चेक वेदर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड द स्टेशन बी इज़ 180 और नॉट। अगर वो 180 आ रहा है देन इट इज़ वी आर गोइंग इन अ correct situation, otherwise we have to redo the survey. Now there are some methods
through which we can eliminate these local attraction. How we can do this? Computing the included angle at each station from the observed bearing in case of a close traverse. अभी हमने आपको बताया था दो तरह के जो सर्वे होते हैं इसमें, क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स. तो जब हम क्लोज ट्रैवर्स करते हैं तो हमें इंक्लूडेड एंगल जो है हर एक स्टेशन का ऑब्जर्व करते चलना चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द अनअफेक्टेड लाइन रन डाउन द करेक्ट बेयरिंग ऑफ सक्सेसिव साइड्स. अगर एक भी बेयरिंग हमारी बीच में गलत हो जाती है तो आगे की जितनी भी बेयरिंग्स होंगी उसमें सब में हमको थोड़ा थोड़ा एरर देखने को मिलेगा. तो हमें क्या करना है, इस स्टेप को यहाँ शुरुआत से ही ध्यान में रखते हुए अपने मेथड को आगे बढ़ाना है. यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं किस तरह से कंप्यूटेशन किया जाता है. ये देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग की कुछ आप देख पा रहे हैं एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं. जैसे मान लीजिए हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमने यहाँ पर लाइन जो है 5 ले ली, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए. ई ए विल बी द योर बैकवर्ड बियरिंग. तो इसकी फॉरवर्ड बियरिंग भी हमने नोट की, इसकी बैकवर्ड बियरिंग भी नोट की. अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग का जो डिफरेंस है उसका हमने निकाला. तो एंगल जो हमने हर उसके कंप्यूटेशन किए, एंगल जो नोट किया वो डिफरेंट यहाँ पर एंगल हमने नोट कर लिए. अब ये नोट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ए बी सी डी ई तक स्टेशन लिए थे और जब हम इसको सम टोटल करते हैं सबका, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और डी, एंगल ई, ये पांचों का जो हमने बेयरिंग नोट की थी, अगर हम इसको टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल हमारा आ रहा है 540. लेकिन हमें इसका टोटल 540 नहीं आना चाहिए. यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एरर है हमारा वो -25 डिग्री का एरर है. और हमने स्टेशन कितने लिए थे? 5. तो इस 25 को हम जब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको? -5. तो हमें क्या करना है, हर एक उसमें जितने भी हमने एंगल लिए हैं हर एंगल में हम 5 को प्लस कर लेंगे. तो जैसे करेक्शन करने के लिए अभी हमने बात की कि अगर हमें कहीं पर एरर मिल रहा है तो उसका हम करेक्शन कैसे करेंगे. तो जो हमारा एरर आया था वो एरर था हमारा -25 डिग्री का. तो हम हर एक करेक्शन में +5 ऐड कर लेंगे. तो जो करेक्शन हमारे एंगल हैं वो हमारे एंगल इस तरह के निकल के आएंगे. जैसे कि पीछे वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं 50 डिग्री 5 मिनट्स था. यहाँ पे कितना था? 50 डिग्री 5 मिनट्स. तो हमने इसमें 5 प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका 50 डिग्री 10 मिनट्स. इसी तरह से एंगल बी में भी था हमारा 138 डिग्री और 40 मिनट्स था. इसमें +5 कर दिया तो देन इट बिकम्स 45 मिनट्स. तो जो हमारा एरर -25 का आया था उस सब को हमने सभी जितने एंगल थे सभी एंगल में 5 करके डिवाइड करके उस एरर को हमने ख़त्म किया. सेकेंड मेथड जो होता है, ये तो हमने जो आपको बताया ये लॉन्ग मेथड था, हाउ वी कैन फाइंड आउट द करेक्शन, हाउ वी कैन डू द करेक्शन इफ़ वी हैव एनी एरर. सेकेंड मेथड जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है. डायरेक्ट मेथड अभी भी पहले भी हमने आपको बताया था कि जब हम अपनी बेयरिंग को नोट करते हैं तो फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग की जो लाइन होती है वो 180 डिग्री का डिफरेंस उसमें आना चाहिए. अगर वो डिफरेंस हमारा नहीं आता है तो वी हैव परफॉर्म्ड इट रॉन्ग. एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ ई एंड ए इज़ ऑल्सो करेक्ट. जब हमारी फॉरवर्ड बेयरिंग और दोनों का डिफरेंस अगर 180 आता है तो इट मीन्स दैट इज़ करेक्ट. अब हम बात करते हैं एरर्स की कि ये एरर हमारे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं. ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमको ये एरर मिल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो एरर है हमने बेयरिंग नोट करने में ही किए हों. तो 3 तरह के एरर जो है हमें देखने को मिलते हैं. पहला है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड इज़ योर एरर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ साइटिंग और थर्ड जो है आपका एरर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो ये जो 3 तरह के एरर हैं इनमें से अगर हमको कोई भी एरर दिखाई पड़ता है, कोई भी सोर्स अगर हमें दिखाई पड़ता है तो हमारे उसमें एरर दिखेगा. तो ये इसको हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर,
एरर ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग कैसे हो सकता है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से कैसे एरर आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। नीडल नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट, यानी कि जब हमने अपने ट्राइपॉड स्टैंड पर अपने प्रिस्मेटिक कंपास को लगाया, अगर वो नीडल जो है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं थी तो अब भी हमारा एरर आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल एरर। पाइवेट बीइंग बेंट नॉट बीइंग एट द सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल, जो पाइवेट था अगर वो बेंट रह गया, जैसे हम उसको अपनी जो वेन को खोलते हैं, आई वेन को खोलते हैं, तो जो पाइवेट था वो बेंड हो जाता है। अगर वो बेंट नहीं हुआ है तो भी हमारे जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो मूव फ्रीली नहीं करेगी और उसके वजह से हमको उसमें एरर देखने को मिलेगा। द नीडल बीइंग स्लगिश, द नीडल हैविंग लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, अगर मैग्नेटिज्म उसका लॉस हो जाता है, वो अपने आप मूव करना बंद कर देती है और नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर रुकती नहीं है, देन ऑल्सो वी विल गेट द इंस्ट्रूमेंटल एरर। पाइवेट अगर डल हो जाता है तभी भी हमको मिलती है। वर्टिकल हेयर जो है अगर वो बहुत लूज़ होगा या बहुत थिक होगा तब भी हमको देखने को मिलेगा एरर। जो साइट है हमारी, जो प्लेन ऑफ साइट है, वो अगर सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग से पास नहीं हो रही है, थोड़ी भी लेफ़्ट या राइट होगी, देन ऑल्सो वी विल गेट द इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट एरर इज़ ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। तो जब हम अपनी आई वेन, अपनी साइट वेन और ऑब्जेक्ट वेन को एक डायरेक्शन में लेकर आते हैं और उस कंपास से उसकी स्टेशन की सेंटरिंग करते हैं और उसकी रीडिंग को नोट करते हैं, तो इफ़ inaccurate centering of the compass over a station occupied, then also your error will be there. If inaccurate leveling of compass box when the instrument is set up, अगर उसकी लेवलिंग यानी कि सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, जो 3 स्टेप्स हमने आपको बताए थे इसको परफॉर्म करने के लिए, अगर सेंटरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है देन ऑल्सो वी विल गेट द एरर। इफ़ लेवलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है देन ऑल्सो वी विल गेट द एरर। एंड इफ़ केयरलेसनेस इन रीडिंग द नीडल, अगर जो हम नीडल है अगर उसको रीड करने में जो उसके अंदर ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, जो प्रिज्म से हम देखते हैं, अगर उस रीडिंग को नोट करने में या डायरेक्शन नोट करने में किसी भी तरह की केयरलेसनेस हमने की, देन वी विल श्योरली गेट द एरर। नाउ नेक्स्ट एरर इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मीन्स अगर जो मैग्नेटिक चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि अगर हमारे बादल आ जाते हैं या बहुत आंधी तूफान चल रहा होता है या बहुत तेज़ हवा अगर चल रही होगी, तब भी हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे मैग्नेटिक चेंजेस उसमें जो कंपास है उसमें आएंगे और उसकी वजह से हमें एरर मिलेगा। इर्रेगुलर वेरिएशन ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, सनस्पॉट, लूनर पर्टुबरेशन, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमको उसमें दिखाई पड़ता है एरर। लोकल अट्रैक्शन जो अभी हमने आपको बताए थे, जैसे स्टील का स्ट्रक्चर कहीं पे होगा या इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, उसकी वजह से भी आपको एरर मिल सकता है। डिक्लिनेशन में अगर वेरिएशन होगा, सेक्युलर, एनुअल या ड्यूरनल, किसी भी तरह का डिक्लिनेशन होगा, देन ऑल्सो वी विल गेट द एरर इन दिस सर्वे। सो सर्वे में हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपास सर्वे में किसी भी तरह का एरर ना आए, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें सर्वे के समय लेने चाहिए। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन कंपास सर्वे? सो हियर आर सम precautions are there, so let us discuss these precautions. First one is the compass box should be tapped gently before taking the reading. This is done to find out whether the needle rotates freely. अगर जब हमने कंपास में अपने प्रिज्मेटिक कंपास को स्टैंड में जब फिट कर दिया है, तो उससे पहले एक बार हमें अपने कंपास बॉक्स को टैप करके देख लेना चाहिए कि वो नीडल जो है, जो ग्रेजुएटेड रिंग है हमारी, वो फ्रीली मूव कर रही है या नहीं कर रही है। सेकेंड थिंग, द स्टेशन शुड नॉट बी सेलेक्टेड नियर मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए अगर हम कॉलेज में सर्वे कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे सर्वे कर रहे हैं जहाँ पर आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक पोल है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं
या लोहे का कोई गेट है, इस तरह का अगर सब्सटेंस है तो उसके सामने हमें ये परफॉर्म नहीं करना है, अदरवाइज वी विल गेट द एरर। द ऑब्जर्वर शुड नॉट कैरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इससे पहले भी हमने कहा था आपको कि जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, तो जो ऑब्जर्वर या जो भी पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द सर्वे, ही और शी शुड नॉट कैरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देन ग्लास कवर, ग्लास कवर जो हमने आपको बताया था कि जो प्रिज्म में भी एक ग्लास कवर लगा होता है और एक ग्लास कवर जो हमारा मैग्नेटिक जो पूरा सर्वे प्रिस्मेटिक कंपास है उसके ऊपर एक ग्लास कवर होता है जो हमारी ग्रिड को, जो हमारे ग्रेटिट्यूड को, या जो हमारे नीडल जो रोटेट होती है उसको, पूरा कंपास को कवर करके रखता है। उस ग्लास कवर को हमें किसी भी हैंकरचीफ से साफ़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उस हैंकरचीफ से ग्लास को साफ़ करेंगे देन ग्लास में बी चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी एंड द नीडल में डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन। जो नॉर्थ और साउथ जो ट्रू डायरेक्शन हमें उसमें देखने को मिलता है उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड वी शुड नॉट क्लीन द ग्लास विद मॉइस्ट फिंगर ऑल्सो, अगर हमारे हाथ गीले हैं तो वो भी, उससे भी हमें उस ग्लास कवर को टच नहीं करना है, अदरवाइज वी विल सी द डिफ्लेक्शन ओवर इट। सो थैंक यू। These are the references of the books which you can refer for this survey. First one is Surveying and Leveling, Volume 1, Kanetkar and Kulkarni, and Surveying Volume 1 of Dr. B.C. Punamia. So you can further refer these books for more updates. Thank you.